वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं बोलने दे दूंगा। जो लोग रह गए हैं उनकी लिस्ट मुझ तक पहुंचा दीजिए, आज नहीं तो दूसरे दिन मैं दे दूंगा आपको टाइम। चलो हाँ आपके साथ बस ठीक है, मैं दे दूंगा टाइम। आई विल फाइंड आउट सर्वे, आई विल फाइंड आउट सर्वे। और आपके लोग जो 4-5 लोग हैं, मैं आपके नाम सेक्रेटरी साहब इनका नोट करके रखिए। मैं आपको अकोमोडेट करूंगा, किस तरह करूंगा, लीव दैट टू मी, लीव दैट टू मी। बस ठीक है। ऑनरेबल स्पीकर सर, वो भी मैं देखा, आपका स्लिप यहाँ पर मौजूद है, वो बोलिए मिनिस्टर साहब। चरागो तुम अगर बुझ भी जाओ, वादा है हम जुगनू। चरागो तुम घर बुझ भी गए, माफ रखेंगे शेर थोड़ा सा। सलातिया साहब जो है वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको बड़ा अदब से प्यार है। तो कहता है कि चरागो तुम घर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा नहीं होने देंगे। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे, कभी भी बाखुदा ये सानिया नहीं होने देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मंडेरों पे भी रखेंगे। दिए रोशन करेंगे और मंडेरों पे भी रखेंगे, और इस पर ये कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। बाखुदा ये सानिया होने नहीं देंगे, हम जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। Honorable Speaker sir, respected member of this house, I rise to present the budgetary framework and policy direction for the Forest, Ecology and Environment Department for the financial year 2026-27. Forests are the lifeline of Jammu and Kashmir, covering nearly half of its total area. While the highest variety of forest types in India, the region is rich in natural resources. This precious wealth is our pride and our duty to protect for future generations. Under UT Capex 2025-26, a budget estimate of 168 crore was approved. Out of this, 148 crores has been released and works worth 56 crores have already been executed, which includes works of different nature like afforestation, installation of boundaries pillars, infrastructure, zoological parks, tracks, soil conservation. Two important projects under SASKI costing 9 crores established by Eco Parks and development of inspection huts will be completed in the coming year. For the financial year 2026-27, we propose an enhanced allocation of 242 crores, reflecting our government's strong commitment to environmental protection and sustainable development. Under CAMPA, against the approved allocation of 175 crores, rupees 155 crores has been released, and implementation is progressing steadily, and for which 50 crores have been expended so far for 2026-27. The proposed budget estimate is 169 crores. Under the program Ek Ped Maa Ke Naam, we have set a target of planting 1 crore saplings this year till January 2026. 71 lakh saplings have already been planted, and I assure this House that the target shall be fully achieved by the end of March. In 2026-27, 1 crore saplings shall be planted by involving public representatives, educational institutions, civil society, and local communities. To strengthen forest governance, we have accelerated survey and demarcation. Out of 12 lakhs boundaries pillars across forests of J&K, 1 lakh have been installed.
digitalization of the forest boundaries has been initiated using CORS-enabled GNSS technology, making J&K a pioneer in adopting this advanced system. Timber extraction and sale through depots is dealt by J&K Forest Department Corporation. During the current year, 29 lakh CFT timbers has been extracted, out of which 636 lakh CFT timbers has been sold so far. Further, through 4914 numbers of applications, 2512 lakh CFT of timber has been supplied from construction timber sale depots and a fair price of division during the current financial year. Presently, 1.22 lakh CFT and 5.01 lakh CFT of timbers available in CP, SD and sale depots for auctions respectively. Wetlands are ecological lifeline. Using remote sensing and GIS technology, we have identified and mapped 260 wetland with additional wetland discovered during ground verifications. The revival of Buller Lake, Ramsar site of international importance, is progressing at historic scale. 5 square kilometer dredge, 78.13 lakhs cubic meters of site removed, 1159 geo reference boundaries pillars installed, 2952 hectares of afforested in catchment area. Construction of non-motorable walkway around the lake is under progress, and development of ecotourism parks has been initiated. These efforts have been enhanced fish catch, benefiting 25200 registered fishermen. Local youth have been trained as eco guides, creating sustainable livelihood opportunities. The Wildlife Protection Wings manage 3 national parks, 14 wildlife sanctuaries and several conservation reserves covering about 11.5% of our geographical area. During the current year, 3005 animals rescued are relocated. 42 control rooms are operational. 12 rescue vans have been procured. Compensation amounting to 30 lakhs for death and 184.24 lakhs for injuries has been disbursed to victims of human-wildlife conflict. Upgradation of Jammu Zoo underway with major expansion of enclosures and new species addition. A comprehensive master plan has been prepared to transform it into a modern zoological facilities. इस पे ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं हाउस को भी ये जानकारी देना चाहूंगा कि ऑनरेबल सीएम साहब भी बड़े पर्टिकुलर हैं जम्मू जू को लेके, क्योंकि जम्मू में वैष्णो देवी माता के श्राइन के अलावा यहाँ हमारे पास कोई ऐसी जगह है नहीं, तो वहाँ जायरीन जो है दूर दराज से आते हैं और जम्मू में सैर व तफरी की और ऐसी जगह है नहीं। हम इंशाल्लाह ताला इसके लिए एक स्टडी कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल एक इस पे डिपार्टमेंट की तरफ से एक टूर भी लगेगा और सिंगापुर और जो दुबई के जो जू है उनके बेस पे हम इंशाल्लाह जम्मू जू को डेवलप करेंगे। इसी तरीके से ऑनरेबल एमएलए हमारे रैना साहब ने कहा था घराना वेटलैंड का, उस पे भी हम काफी काम कर रहे हैं और उसको भी इंशाल्लाह अपग्रेड कर रहे हैं। We are also proposing conservation breeding centers for endangered species such as hungal, markhor, musk deer, pangolin and vultures. Jammu and Kashmir remains carbon positive. Our forest cover ensures that carbon sequestration exceeds emissions. However, climate change impact, erratic rainfall and reduced snowfall and extreme events demand adaptive measures. The revised state plan for the plan on climatic change proposes 58 mitigation strategies and 98 adaptation measures. These include renewable energy promotions, watershed restoration, slope stabilization and climate resilient infrastructure. इसमें तारागबी साहब ने भी एक सरासल बात की है, उसके उनके रेफरेंस के लिए उनकी जानकारी के लिए ऑलरेडी हमारे ये अप्रूव्ड प्लान में है और इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। Under National Clean Air Program, 72 crore has been released to Jammu and Srinagar Municipal Corporation.
PM10 levels have reduced by 18.5% in Jammu and 41.3% in Srinagar compared to the base year. Air and water quality are being monitored regularly at sanctioned stations across J&K. The sustainable collection and utilization of NTFP policy notified in 2022 has empowered local communities. 171 sale depots established. 7100 families benefited through thereby generating an income of 792 lakhs. Over to 8 lakhs quintals of free fodder in the last 5 years have been distributed. Firewood and timber supply mechanism have been strengthened and transparency through e-auctions and digital system. The department takes up slope stabilization works, minor engineering works in the form of DRSM, crates, water harvesting structures and other techniques like use of geotextiles, etc. The main purpose of constructing these structures is to reduce the velocity of the running water. During this year, 70 water harvesting structures have been created and about 1663 crates and DRSM to the tune of about 13138 cubic have been also been erected so far. इसके लिए ऑनरेबल एमएलए श्यामलाल जी ने भी और दूसरे ऑनरेबल एमएलए साहब हजरात ने भी ये कहा कि ये जो बारिश का पानी फ्लड की शक्ल में बह जाता है और सरहदों के दूसरी पार चला जाता है, इसको रोकने के लिए भी और ये हम एक बड़ा प्लान जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से DRSM और के तहत जो है ला रहे हैं, जिससे सबसे बड़ी हमारी जो वाटर कंजर्वेशन और इस पे हमारा ये काम होगा. The Pollution Control Committee has integrated all services into a single window system. Auto renewal of green category industries and third-party certification framework have reduced procedural delays while maintaining environmental safeguards. Recruitment and promotion processes have been fast-tracked with multiple departmental promotion committees. DPCs convened and significant number of promotions finalized during the year. As of 31st December 2025, against the available vacancies, sustainable selection were received from JKPSC, JKSSB, ensuring timely filling of posts across various categories. In total, 12 DPC were held at the HOD level, resulting in the promotion of 387 officials, reflecting the department focus efforts to strengthen human resources and improve administrative efficiency. Forest clearance process have been streamlined and proactive support is being provided to executing agencies to ensure timely approval. A total number of 2389 cases were received on Pravesh portal, out of which 11155 cases were granted stage first in principle. Approval covering 31870049 hectares, while 680 cases received stage second. Final approval from Ministry of Environment, Forest and जो चंडीगढ़ में सर हमारा ये डील करते हैं और हमने मैं इसमें गुजारिश करूंगा ऑनरेबल एमएलए हजरात से कि हर जगह पे ये आता है. एक मैं लॉजिस्टिक सपोर्ट साहब से लेना चाहूंगा सबसे. सर हकीकत में ये होता है कि जब एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है, सैंक्शन होने के बाद जब कंट्रैक्टर को अलॉटमेंट हो जाती है प्रोजेक्ट की और मशीन जब जो है वो जाके साइट पे लगाते हैं और उस वक्त जब फॉरेस्ट या दूसरा डिपार्टमेंट आता है उस वक्त वो एनओसी मांगते हैं. उस वक्त एनओसी तो इतना जल्दी है नहीं, एक प्रोसीजर सेटअप है. तो मैं गुजारिश ये करूंगा सर, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इससे एक ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट हम सैंक्शन करें उसका ये फॉर्मेलिटीज जो है पहले कर लें और प्रवेश पोर्टल पे चाड़ लें और फिर काम में रुकावट नहीं होगी. ये एक करना पड़ेगा सर इस पे, और हमारा डिपार्टमेंट भी जो है इस पे इंशाल्लाह काम कर रहा है और हम इस पे करेंगे. In the coming year, 1 crore plants shall be planted by involving various stakeholders and by dovetailing funds from various schemes. Ongoing exercise of survey and demarcation shall be completed.
इसमें सर मैं गुजारिश करूंगा जो ऑनरेबल एमएलए हजरात ने अप्रीहेंशन जाहिर किया है कि रेवेन्यू अथॉरिटी नहीं होती और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है जाके पिलर्स बाउंड्रीज जो फिक्स करते हैं। मैं ये कहूंगा एज ए मिनिस्टर इंचार्ज डिपार्टमेंट को मैं डायरेक्शन दूंगा कि जहां भी कोई रेवेन्यू के बगैर कोई ये बाउंड्रीज पिलर फिक्स करेगा वो बाउंड्री पिलर्स फॉरेस्ट की कंसीडर नहीं की जाएंगे। आप बाकायदा तौर पे रेवेन्यू से तहसीलदार कंसर्न से एक सर्टिफिकेट लेंगे और वो रेवेन्यू की टीम अपने साथ रखेंगे इन फ्यूचर, और ताकि डिमार्केशन जो है बेहतर ढंग से हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। Ongoing exercise of survey and demarcation shall be completed. Focused attention shall be paid to identify forest track routes like Mansar to Mahor Samba, Targala to Radha Swami Ashram Jammu, Sanasar to Lander Batot in Jammu division, and track routes like Rampura to Lolab, Cambridge, Narang to Gang Bala Sindh, and Margan to Chowharang Nag in Kashmir division. Focus shall also be laid on development of eco huts in Grays, Bandipura, Titwal, Arabal, Kulgam, and forest rest house in Sanasar Batot, Mantalai, Udhampur, Jai Valley in Bhadraba, Bani Basoli, etc. Ecotourism promotion activities shall be taken by involving total communities at identified areas. That is Bangas in Kopara district, Shosh Maidan in Badgam district, Arabal in Kulgam district, Sakral in Kuthua district, Daddu in Udhampur district, and Dera Ki Gali in Rajouri and Poonch districts. Care assessment exercise on private land shall be completed during 2026-27 along with the preparation of management plan for the next 10 years felling cycle. सर ये इसमें भी हमें जो खैर ट्री जो प्राइवेट लोग काम करते हैं ये भी इसमें परमिशंस का और साल के बाद जो इनका ये होता है इसमें भी एक जो हमारे बेनिफिशरीज हैं जो लोग इसमें वो काम करना चाहते हैं विद परमिशन, उसके लिए भी ये रहता है कि वो हर साल उनको परेशानी होती है। तो ये हम एक एंड वहाँ हम कैंपा के जरिए और ये इस पे हम वहाँ काम करेंगे। ये देखने को मिला है अर्सवाइल डोडा फ्लड्स आते हैं या लैंड जो है जो ड्रिफ्ट हो रही है, लैंड स्लिप्स के केसेस आते हैं, तो ये कैचमेंट एरिया के तहत हम काम करेंगे ताकि इस एरिया जो है स्टेबल हो सके। The two numbers of project under SASKI, namely eco awareness and local community empowerment by establishing eco parks and strengthening forest conservation by developing inspection huts in Jammu and Kashmir shall be completed during 2026-27. For sensor-based ambient air quality monitoring system at Pulwama, Anantnag, Kathua and Samba shall be installed. Upgradation of Jammu Zoo to accommodate more, ये शायद मैंने पहले पढ़ लिया था, दोबारा ये डबल शायद आ गया है इसके लिए, क्योंकि जम्मू के लिए हमें, क्योंकि ये हमारा एक मास्टर प्लान होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर रेयर endangered and threatened animal species like hungal, markhor, mask deer and pelican and vulture. Protection infrastructure, 1 rescue center for control rooms, 3 guard huts and 6 watch towers shall be constructed, developed in different wildlife division for mitigations of human-wildlife conflict. Our vision is clear: to ensure ecological security, climatic resilience, biodiversity conservation and community prosperity. Forests are not just about trees, they are about water security, livelihoods, disaster mitigations and the future of our children. With the support of this August Rose, we shall continue to protect, preserve and enhance the natural heritage of Jammu and Kashmir. अब मैं जल शक्ति में हूँ। आपकी आसाइश के लिए बहुत मुख्तसर रखा है। Honorable Speaker, sir, the Jal Shakti Department is committed to providing drinking water to every household in Jammu and Kashmir through convergence of Jal Jeevan Mission, NABARD and UT Capex resources. For the year 2026-27, the Capex budget under demand number 223 has been proposed 1561.9 crore, reflecting a 10.4% increase over the revised estimate of
1399 crores. The budget is proposed at 1677 crores. Jal Jeevan Mission, under Jal Jeevan Mission, we are committed to universal functional household tape connections. The total cost of JJM schemes is 1343 crores. ये तो सर ये सबको पता ही है JJM का। ये अगर मैं ये सारा पढ़ना शुरू हो जाऊंगा तो मैं। अच्छा, आप मिनिस्टर साहब मुझे एक बात बताइए, आप कितना टाइम में भी लेना चाहते हैं? 15 मिनट सर। 15 मिनट आप कंप्लीट करेंगे? 20 मिनट सर, 20 मिनट। तो हमें हाउस टाइम बढ़ाना पड़ेगा। एक तो ये 15 मिनट ले लेंगे और भी 5-10 मिनट लगते हैं ना फिर इसको वाइंड अप करने के लिए। मेरे ख्याल में हम फिलहाल आधा घंटा बढ़ाएंगे। हम उसमें ये इजाजत देता टाइम बढ़ाने की? चलो आधा घंटा टाइम बढ़ाएंगे। इजाजत दिया था मैंने भी पूछा था इनको कि जब मैंने टाइम बढ़ाया 4:30 से 5, मैंने पूछा था उनसे। अच्छा, इसे भी पूछा। अच्छा, चलो अच्छी की बात। चलिए सर, ये जब अमरुद्दौला साहब ने टेक ओवर किया था, जल जीवन मिशन में हमारी वर्क डन लायबिलिटी 400 करोड़ थी और आज 1500 करोड़ वर्क डन लायबिलिटी है। हमारे 2 प्रोजेक्ट सामने इनके जैसे इनॉग्रेट किए। मैं जस्ट इनकी रेफरेंस की से बात करूंगा और ये कहते हैं कि 19 प्रोजेक्ट जो है हमारे अभी दूसरे तैयार हो चुके हैं, कंप्लीट है तैयार। तो ये सब मैं ऑनरेबल स्पीकर सर जनाब की जानकारी के लिए, हाउस की जानकारी के लिए, ये जितना भी 400 करोड़ से 1500 करोड़ जो वर्क डन लायबिलिटी है ये विदाउट मनी। मैं इसमें सर डिपार्टमेंट को भी मुबारक करूं और मेरे जो कंट्रैक्टर लोग हैं उनको भी मुबारक करूंगा। ऑनरेबल एमएलए साहब का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, इनकी सरपरस्ती जो इनकी कंस्टिट्यूएंसीज में रही है, वो उनकी सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हुए हैं। वर्क डन लायबिलिटी 400 से 1500 करोड़ है और बहुत से प्रोजेक्ट हमारे जो हैं वो 70%, 80% और 90% जो है वो तैयार है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक बार मैं खुद 2 बार मैं यूनियन मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात रही। एक बार मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, वो भी इस पे मेरे साथ गए और अब हमें कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये मिशन जो है ये प्रधानमंत्री साहब का मिशन है और इस मिशन को कामयाब भी होना चाहिए बगैर कोई सियासी बात किए। और हमें ऑनर भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी बड़ी स्कीम जो है लॉन्च की पूरे देश में। यूं ही पैसा आ जाता है और इसका हम इंशाल्लाह काम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक ये भी हाउस को बताना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट्स, ये स्कीम्स हमारी स्कीम है, हम इनको डिफेक्ट नहीं होने देंगे, हम इनको बर्बाद नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ताला इनको रिवाइव करेंगे और किसी तरीके से भी इसको हम, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इसकी खिदमत हम नहीं करते हैं। During the last year, 69 projects costing 302 crores were commissioned, benefiting nearly 29,000 households. The Honorable Union Ministers announced the extension of JJM till December 2028. उसके लिए भी हमें कोई चिंता की बात नहीं है कि ये स्कीम क्लोज हो जाएगी। 2028 तक ऑनरेबल स्पीकर साहब ये स्कीम जो है ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया है विद इनहेंस्ड आउटले। द उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट इज कमिटेड टू कंप्लीटिंग द मिशन विदिन द एक्सटेंडेड टाइमलाइन सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। जो मैंने अभी बात की है वो जहाँ हमने रिटर्न में भी हाउस के सामने रख रहे हैं। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इज ए कोर एलिमेंट ऑफ JJM। जैसे यहाँ काफी ऑनरेबल एमएलए हजरात ने यहाँ कहा कि वाटर क्लीन नहीं है, उसमें परेशानी आ रही है, तो इसके लिए सर मैं बताता चलूँ कि 98 वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज आर फंक्शनल, 2 एट UT लेवल, 20 एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, 76 एट सब डिविजनल लेवल। Over 2 lakhs water quality tests were conducted this financial year. Third-party inspection and surprise check are regularly conducted. और जहाँ भी शिकायत आ रही है ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से डिपार्टमेंट नोट कर रहा है और इस पे जो है बाकायदा तौर पे कार्रवाई होगी और हम कोशिश करेंगे कि नीट एंड क्लीन वाटर सप्लाई जो है आवाम को जो है प्रोवाइड किया जाए। सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, द प्रपोज्ड टारगेट फॉर 2026-27 अंडर द मिशन आर कंप्लीशन ऑफ
850 ongoing JJM scheme, full operationalization of completed scheme through rationalization of existing departmental manpower, 100% Har Ghar Jal certification for all villages, strengthening and capacity building of Pani Samiti, NAPL accreditations of the all remaining labs under NABARD and various 57s with cost of 740 crores under execution of NABARD. Out of the 7 schemes have been completed and remaining are targeted to be completed in 2026-27. In addition to the groundwater recharge pilot project has been taken up Punch under REDIF 31st for long-term sustainability of water resource. सर एक मैं हाउस की जानकारी के लिए ये बताऊं कि एक नेशनल चैलेंज हमारे सामने है एनवायरनमेंट को लेके और सर जो वाटर टेबल को लेके तो पुंछ से सर हमने एक शुरू किया है जो वाटर टेबल को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाएगा उसके लिए वाटर रिचार्ज पिट्स वगैरह वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स वाटर चैनल्स ये हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और इसको इंशाल्लाह ताला इस सिस्टम को पूरे स्टेट में जो है सिस्टम को ले जाएंगे। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन थी, इस पे हमने एक पुंछ से एक ये सिलसिला जो है शुरू किया। अंडर यूटी कैपेक्स 1136 drinking water works under execution of which 419 stands completed and 550 schemes are targeted for completion in 2026-27. These efforts focus on strengthening the distribution network, retrofitting of aging infrastructure and ensuring last mile connectivity. Honorable MLA साहब यहाँ फरमा रहे थे कुल्लू साहब और हमारे दूसरे हजरात भी के पुरानी स्कीमें हैं जो फंक्शनल नहीं है, बहुत पुरानी स्कीमें और उन स्कीमों को ठीक करने के लिए जो है ऑनरेबल एमएलए हवेली ने भी ये बताया कि हमारा जो है वहाँ मशीनरी जो है वो डैमेज हो जाती है और ये सब चीज़ें इसके लिए हम कोशिश करेंगे सर कि स्टैंड बाई मशीनरी हो और पीर पंजाल में और कुछ दूसरे एरियाज में भी मुझे ज़बानी तो याद नहीं है लेकिन हाउस की जानकारी के लिए फिर ट्रायल बेस पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो पीर पंजाल में सर हमने क्योंकि पावर की प्रॉब्लम रहती है और जो भी नई स्कीमें हमने वहाँ शुरू की हैं उनमें जनसेट की फैसिलिटी दी गई है, अगर ताकि पावर नहीं होगा तो जनसेट के जरिए जो है वाटर सप्लाई जो स्कीम बहाल होगी। 2 important water supply projects which will ensure uninterrupted water supply to premier health institution of Jammu and Kashmir are under execution. AIIMS Avantipura is being executed under 2 phases at estimated cost of 54 crore. Phase first of the project has been completed and phase second under execution and shall be completed during 2026-27. इसके लिए मैं ऑनरेबल एमएलए हमारे जो है तराल के इनको भी मुबारक करूंगा कि ये भी इनकी भी काफी इसके पीछे जो है इनका प्रेशर रहा और इसको हमने टेंडरिंग करवाया और इसको जो है अब काम चल रहा है। लाइकवाइज वाटर सप्लाई स्कीम ऑफ एम विजयपुर हैज 95% फिजिकली प्रोग्रेस। मैं सलाके साहब की जानकारी के लिए हमेशा जब भी मिलते हैं और जब भी ये बड़े भाई है मेरे जिनको हक है दाड़ा भी लगाते रहते हैं कभी कभी, तो मैं इनको बताऊं कि 95% काम जो है इस पे हमने किया। टू टैकल वाटर शॉर्टेज द टैंकर fleet has been strengthened with 20 new tankers over 2 years. 20 टैंकर जो है 10 हमने पिछले साल दिए थे, 10 इस साल देने का इरादा है इंशाल्लाह। In addition to 123 departmental and 85 private tankers ये चल रहे हैं सर। Under शासकी 42 projects which worth 163 crores have been approved, 155 crore released and 47 crores spent so far. 430 crore flood damage works for 2025 have also been identified for restoration. For immediate relief, 7 hand pumps per constituency have been approved at identified location on honorable MLA's demand. सर मैं गुजारिश करूं कि ऑनरेबल एमएलए, क्योंकि बेसिकली मैं भी एमएलए हूं पहले और ये सब चीजें मैंने देखी हुई है, फेस किया हुआ, 4 टाइम लेजिस्लेटर हूं और क्योंकि 4 टाइम लेजिस्लेटर ये सब चीजें जो है देख के निकला हूं। तो एमएलए की प्रॉब्लम तो है, जैसे ऑनरेबल एमएलए हवेली भी कह रहे थे कि हैंडपंप लग रहे हैं, पूछ नहीं रहे। सर मेरी तरफ से क्लियर कट डायरेक्शन डिपार्टमेंट को है
अगर तो किसी के इंडिविजुअल हैंडपंप लगेगा, डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और वो पेमेंट जो है वो डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा, वो पेमेंट वही ऑफिसर करेगा जो इंडिविजुअल हैंडपंप किसी के घर के साथ लगाए। और दूसरा ये कि कोई भी हैंडपंप्स किसी भी कंस्टिट्यूंसी में, चाहे वो पीआरआई का हैंडपंप होगा, शासकीय का हैंडपंप होगा, ट्राइबल का हैंडपंप होगा, किसी भी डिपार्टमेंट का हैंडपंप होगा, जब तक वो एमएलए का अप्रूवल नहीं होगा वो हैंडपंप नहीं लग पाएगा। अगर जो ऑफिसर लगाएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने कोशिश की है सर कि क्योंकि इस एमएलए के इंस्टीट्यूशन को इसकी वकार को बहाल करने के लिए मैंने हमेशा कोशिश की है। और क्योंकि एमएलए जो है, मैं समझता हूँ एमएलए किसी पार्टी जात पात का नहीं होता है, वो एमएलए होता है, वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो लिहाजा इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए मेरी कोशिश है। कहाँ तक मैं कामयाब हुआ हूँ वो अलग बात है, लेकिन मेरा हमेशा यही इंशाल्लाह रहा। थोड़ी ताली भी बजा, क्या करते हो? Our response to the devastating August to September 2025 flood exemplifies crisis leadership. सर मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो फ्लड जम्मू में आया उसके लिए मैं ऑनरेबल एमएलए हजरात जो जम्मू से हैं, कश्मीर में हमारे एमएलए कश्मीर में भी बड़ा रहा ये जेलम का बड़ा, लेकिन मैं ये सर ये रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा चीज कि जम्मू का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका था। वो पावर का सिस्टम हो, क्योंकि पावर से ही हमारा डिपार्टमेंट चलता है, पूरी लिफ्ट स्कीम हमारी है। और जम्मू के हमारे जितने भी ये फिल्ट्रेशन प्लांट थे, जितने भी हमारे बोल बेड थे, सब डैमेज हो चुके थे। मैं सर ये भी हाउस में रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा, मैं डिपार्टमेंट के उन लोगों को मुबारक करूंगा कि जो दिन रात लगे रहे। और मैं रिकॉर्ड में ये लाऊंगा कि मैं भी खड़ा रहा और मॉनिटरिंग करता रहा और सीएम साहब को मैं जो अपडेट करता रहा। रात के 2-2, 3-3 बजे जो है हम उस पे रहे फील्ड में। और इसके लिए मैं जो हमारे एसीएस हैं काबरा साहब, इनको भी मुबारक करूंगा और रिकॉर्ड में सब चीजें लाऊंगा कि वो भी एक सफाई की तरह जो है महाज पे खड़े रहे और ये सब चीजें। और मैं जिस दिन ये बड़ा एक फ्लड आ गया था, हमारे एमएलए अखनूर, ऑनरेबल एमएलए अखनूर, मैंने इनको देखा कि दरिया के बिल्कुल किनारे, और मुझे भी वहां ले गए। तो मैं तो डर ही गया, मैंने कहा पता नहीं कोई साजिश है, ये मुझे यहाँ लेके आ गए। बल्कि हमने वहां से लोगों को उठाया, 250-300 फैमिलीज थी उस बारिश में और तूफान में। सर ये एक मैं कहूँगा कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने इस नेचुरल डिजास्टर का मुकाबला किया और करना भी चाहिए। इसलिए पूरे हाउस को, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मैं मुबारक करूँ। अब इसमें सर ये है कि हमने कितने अरसे में जो है जम्मू का जो रिवर तवी कितना इसमें 34 फीट जो है सरपासिंग 2014 के लेवल से बढ़ गया। और इसी तरीके से सर ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो मैंने बता दिया यहाँ कि विदिन 24 आवर हमने इनको रिस्टोर किया और 5000 टैंकर्स हमने प्रोवाइड कर दिए फ्री ऑफ कास्ट। ये सब चीज़ें जो और 2000 वाटर सप्लाई स्कीम है बीन टेम्पररी रिस्टोर अक्रॉस यूटी। 2000 के करीब स्कीमें जो है विदिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमने ये किया। और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हाई लेवल कमेटीज बीइंग सेट अप विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फॉरेस्ट, आरडीडी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, JK Vora, UED, JSD and other departments to ensure water security and effective flood control. The state specific action plan on the water prepared under the National Water Mission with support from Roorkee and IIT Jammu has received draft approval from the Government of India and the interim report is in the final stage of approval. ये के मास्टर प्लान के फ्यूचरिस्टिक आने वाले टाइम में हमें वाटर क्राइसिस होगा जम्मू के, जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी एक सवाल के जवाब में यहाँ कहा कि जब तक हम चनाब का पानी टेप नहीं करेंगे, एक बड़ा जो मास्टर प्लान यहाँ लेके नहीं आएंगे, उसके बगैर कोई मसले का हल नहीं है। तो इसके लिए हमने जो है विद सपोर्ट ऑफ
ये रुड़की और IIT जम्मू का जो एक इनकी सर्विसेज ली है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस पे जो है बाकायदा तौर पे इंशाल्लाह इसका अप्रूवल होगा और इसके लिए काम करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज बीइंग डन इफेक्टिवली। ऑल वैकेंट पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर SCs ये हमने सब लगा दिए सब जब हमने टेक ओवर किया था। और यहाँ 30 पोस्ट जो थी वो SCs की थी, जिनमें से अल्लाह के फजल करम से 28 जो है वैकेंट थी और 17 चीफ इंजीनियर थे, अल्लाह के फजल करम से 15 वैकेंट थी। और इसी तरीके से आप नीचे ग्राउंड लेवल पे जाइए सर, जेई से लेके 550 के करीब जेई को हमने लगाया भी और फिर इतने के करीब इतने लोगों को प्रमोट किया ही। AWS को एक्शन बनाया, SCs को सर हमने एक्शन को हमने SC बनाया और SCs को हमने चीफ इंजीनियर बनाया। और सर पहली बार जम्मू कश्मीर में एक सर्विसेज रूल्स बनाए गए और उस पे जो है वो जो हमारे लोग जो हैं फिर उनकी प्रमोशंस हुई और उन्होंने जैसे यहाँ मेरे दोस्त यहाँ कह रहे थे कि फिर जाके सिस्टम को सर एक बिखरा हुआ सिस्टम, एक बिखरा हुआ निज़ाम जो है हमें विरासत में मिला और इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए से मेरे ऑनरेबल MLA मेरे भाई श्यामलाल जी ने कहा कि इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमें मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं सीनियर ऑफिसर्स उनका और बिलखुसूस मैं कहूँगा पूरी कैबिनेट का और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का निहायत ममनून हूँ कि उन्होंने जो भी प्रपोजल हमारा गया उसको थ्रू किया। A dedicated design, inspection and quality control wing has been set up. New circles and division created in remote areas. सर ये ऑनरेबल MLA साहिबान की जैसे रियासी के हमारे ऑनरेबल MLA हैं, हमारे अनंतनाग के ऑनरेबल MLA हजरात हैं, बाकी ऑनरेबल MLA हजरात भी डिमांड करते हैं न्यू डिवीजन की। सर मैं गुजारिश ये करूंगा कि इस पे अभी तो कोई सरकार का इरादा नहीं है, लेकिन जहां कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं नहीं होगी वो वहां हम डिवीजन जो है फर्स्ट फेज में स्टार्ट करेंगे और बाकी जो डिवीजन जहां नया डिवीजन खोलने की डिमांड है उस पर भी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। और जब ये कुछ चीजें हमारी पेंडिंग है अभी और आप सबको जनाब को भी पता है, जब वो क्लियर हो जाती हैं सर इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगी तो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे और नए डिवीजन भी खोलने की तजवीज़ जो है वो उसको जारी रखेंगे। क्वालिटी मॉनिटरिंग स्ट्रेंथन इन श्रीनगर एंड जम्मू, 2 DPCs हेल्थ प्रमोटिंग, ये तो मैंने बता दिया सर, ये सारे कितने हमने 1000 के करीब जो है नॉन गजेटेड पोस्ट जो है वो SSB की और ये प्रमोशन वगैरह के लिए मैंने बता दिया। सर इसी का विंग है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, शिफ्टेड टू इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। दी कैपेक्स फॉर 2026 has been raised to 996 crore, a significant increase in 62% from last year revised 612 crores। जो सरोटिया साहब के इसमें कोई शक नहीं है कि इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट अब जनाब की वसादत से जहां हमें खड़ा किया है पैसे की हर डिपार्टमेंट में कमी तो काम कर रहे हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में और उनकी ब्लेसिंग से सिस्टम चल रहा है। इस साल हमने कोशिश की क्योंकि इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में इस साल हमने 60% एलोकेशन को बढ़ाया है। ये एक अच्छी बात है और मैं समझूंगा कि इससे ऑनरेबल MLA हजरात जो है इनकी डिमांड कदरे अकोमोडेट हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लास्ट ईयर के हमारे जो उससे इसको इंक्रीज किया 62% फॉर लास्ट ईयर रिवाइज बजट। Out of 7 lakh hectares of cultivated land, 3 lakh hectares are currently irrigated. Efforts are underway to cover the remaining 3 lakh hectares through major and minor irrigation projects under PMKSY. PMKSY का सर क्योंकि इसका पैसा ही नहीं आ रहा है तो इसके लिए भी मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है सर। दिल्ली में 2 बार हमारे ऑफिसर्स गए हैं और इसके लिए भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अपने लेवल पे हम सोच रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली से अभी पैसा आना बहुत मुश्किल है। तेरे वादों के जिए हम ये जान झूठ जाना, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता।
तो इसमें भी लगता है कि जेजेएमई है। लेकिन हमने खुद अपने लेवल पे सर ये सोचा है कि PMKSY में कश्मीर में काफ़ी काम हुए और इसका हम विजन डिपार्टमेंट जो है एक प्रपोजल बना रहे हैं जो हमारी वर्कर लायबिलिटी है उसको किस तरीके से क्लियर किया जाएगा और बाकी जो काम है वो उनको किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। नबार्ड इज सपोर्टिंग 45 ongoing projects, including 12 planned for completion in 2026-27. 20 new reduced 31st projects worth 156 crore have been approved. कुछ नए प्रोजेक्ट भी सर हमारे पास आए थे जो हमारी छोटी सी किट्टी है और उसमें हमने ऑनरेबल MLA हजरात की डिमांड पे ही उनको अप्रूव किया है और जो एरिया रह गया है उनके लिए भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी इंशाल्लाह ताला उनको भी ड्यू शेयर जो है मिलेगा। इशापुर कंडी डैम प्रोजेक्ट इज नियरिंग कंप्लीशन एंड विल ब्रिंग इरिगेशन टू ओवर 32,000 हेक्टेयर्स इन कठुआ एंड सांबा, इंप्रूविंग फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इनकम टू मैनेज हायर वाटर फ्लोज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेन रिवर canals from Basantpur to Uj barrage has been taken up with 17 important works planned at 5 crores to ensure safe water drinking during Kharif 2026. The Tavi Barrage project in Jammu, costing 64 crore, is about 90% complete. It will help flood control, water regulation, and also develop into a major tourist attraction. The project is fully automated and linked with an early flood warning system, with completion expected by March 2026. Under the comprehensive flood management project, River Jhelum flood carrying capacity has been increased from 318 0006 to 140000 between Sangam and Badshai Bagh in Srinagar, significantly improving safety. Under PMDP phase second part A, 31 bank protection works worth 276 crore are in progress, of which 17 have been completed. Two regulatory gates at Hoxar wetland have been completed at cost of 28 crores. सर ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे जो हमारा हॉस्कर जो हमारा ये वेटलैंड है 28 करोड़ का प्रोजेक्ट किया है सर। इसमें अब हेल्पिंग रिस्टोर द वेटलैंड इकोसिस्टम, टोटल एक्सपेंडिचर इज फॉर इज 160 crore and the second central assistant install of 60 crore was released on 22nd January 2026. These funds will be used to clear pending works and further strengthen flood protection. Resanctioning of the flood spill channel was reviewed by expert agencies based on studies. Major dredging was ruled out as it may increase flood risk and damage river banks. ड्रेजिंग से जो डैमेज हो रहा है इसके लिए हमने जो है फ्लड चैनल्स सिविल चैनल बनाने का जो डिफरेंट साइट्स पे जो है वो एक प्रपोजल जो है वो हमारे पास चल रहा है। इंस्टेड सिलेक्टिव मॉडिफिकेशन विद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट आर बीइंग कंसीडर्ड आफ्टर टेक्निकल रिव्यू ऑफ CWC and CWPRS. Entry and exit gates at Hoxar's wetland have been completed at 28 crores, maintaining 3 to 4 feet mean season water level has helped revive the wetland and significantly increase the migratory birds population. सर इसमें 4 फुट तक पानी जो है वो लीन पीरियड में भी सर हमें वेटलैंड में उसमें मिलेगा हॉक्सर वेटलैंड में, जिससे ग्राउंड वाटर भी हमारा रिचार्ज होगा, वो बढ़ेगा और जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह हैं ये भी इनका भी आना जाना रहेगा। इन व्यू ऑफ दी perpetual flood threat and to brace for next monsoon season immediately after the September 2026, a detailed post-monsoon safety audit was initiated by the department. This identifies various works at estimated cost of Rs 70 crores and these have been taken up by the Jal Shakti department under the various funding meeting. 24 crores under FM, DAP, district sector, DM, RR, UT capex and Rs 46 crores under Jal Shakti department fund count sectors and these are at different stages of execution. Restoration of Avantipura canal bridge, मैं इसके लिए हमारे यहाँ
एमएलए साहब वीरी साहब नहीं है. On the night of 17 June 2025, the Avantipura Canal which carries 250 sluices is a newly course suffered a major breach near village Wangama, threatening nearly 2,000 hectares of paddy land during peak demand. Though round the clock efforts, Irrigation and Flood Control Department Kashmir restore water supply within 4 days by creating a canal detour and carrying out the temporary works, demonstrating the responsiveness, innovations and resilience of the field teams. बहुत ही कम अरसे में सर हमने एक बड़ी ब्रिज को जो है वो ठीक किया. रेस्टोरेशन वर्क्स ऑन जेलम एम्बैंकमेंट, जानीपुरा ब्रिज बडगाम, triggered by extreme water rise in early September. This bridge was swiftly inspected, dewatered and permanently restored using wooden peelings, boulders, dumping and earth filling. The work was completed within the record time of 80 days. Marwal embankment. Here, embankment instability lead cracks and slopes damage. Restoration works involving wooden filling and toe protection are underway at cost of 60 lakhs with 80% physical progress up to date. Gandapar embankment. Flowing and instability affected more than 90 meters of embankment. Permanent restoration at cost of 144 lakhs through the toe protection and geo enforcement is in progress, with about 70% completed. Restoration of all damage in Jammu province through irrigation and flood control sector. During the August-September 2025 unprecedented flood that affected the Union Territory caused significant damage to irrigation canals and flood protection infrastructure. Despite of extensive disruption and apprehension of the public of not getting irrigation water in time as per crop requirement, the department worked tirelessly and temporarily restore all affected canals and embankments, ensuring continuity of irrigation and safeguarding critical infrastructure. Long-term strengthening and measures are underway to enhance the resilience against the future floods. Man Rabil Canal and Tavi feeder channels. Argwal Canal system, Garkhal Canal, Tavi Canals, Kutua Canal, Main Ravi Canal, flood sector Ravi Canal. तो ये हमने सर ये within shortest possible time में हमने सब इन सबको temporary restore कर दिया, जितना भी मैंने गिनाया. Flood plain zoning. During the September 2025 flood event was observed that the discharge carrying capacity upstream of Srinagar is only about 4. अब थोड़े रह गए. In accordance with the J&K Water Resource Management and Regulation Act 2012-2010 and based on the inundations of the September 2014 floods, Irrigation and Flood Control Department identified 7 areas for notification of flood basins plans and prepared Google Maps file for Hoskers, Nogam, Jeel, Narkara, Nambal और ये डिफरेंट एरियाज का यहाँ सब दिया है, नाम दिया है मैंने. तो इसको शॉर्ट करते हुए रेवेन्यू डिटेल ऑफ Anchar and Wooler lakes are being compiled through respective Deputy Commissioner. Recently, hydrological modeling for 1 to 25 years return period flood to demarcate the regulatory zone from Sangam to Badshai Bagh is being carried out through JTRFP. Engaged consultant and expected to completed by the end of February 2026. Under the UTCAPS program, more than 1,000 irrigation and flood control works are currently under execution, of which nearly 50 works have been completed during 2025-26 so far, with remaining works in progress. While concluding, let us join hands to conserve water, for water is life. Let us make every drop count. Let us pledge to protect our water resources
plant millions of trees for a better tomorrow. Remember, every small action counts. Let us conserve water today and every day. Let us work together to create a water secure future for ourselves and for generation to come. Let us make a conscious effort to save water and doing so save our planet. थैंक यू, थैंक यू। अब सब ट्राइबल का अभी लास्ट पर आप आ गई है, हम सबको मिलके, मैंने कहा आपने तो अपील की हमसे कि हम सबको मिलकर, हाँ सर, क्या ट्राइबल का सर थोड़ा आप थोड़ा टाइम फिर बढ़ाना पड़ेगा। आपने 15 मिनट मांगे थे, हमने आधा सर, घंटे। ये तो ट्राइबल का थोड़ा सा है सर, इसमें 10 मिनट लग जाएंगे ट्राइबल। 15 मिनट टाइम बढ़ाने की इजाजत देता है उस टाइम आप 15 मिनट बढ़ा दिया गया। Jammu and Kashmir is home to a significant scheduled tribes population comprising Gujar, Bakarwal, Gaddi, Sipis, Pahadis, ethnic group, Padris and other indigenous communities. Most of these communities live in hilly, forested and border and high altitudes areas. Many follow seasonal migration pattern along traditional routes. Because of different geography and mobility, these communities have historically faced challenges in accessing education, healthcare, markets and infrastructure. Our responsibility is to ensure that the geography does not become distinct. Our approach is clear: development that respect identity, progress that preserve culture and empowerment that strengthen communities' dignity. Before outlining the roadmap for 2026, it is important to review the achievements of the current financial year. Scholarship and educational support. सर, इसमें स्कॉलरशिप की यहाँ बात आती रहती है सर। स्कॉलरशिप जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, हमारा डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा डिले हुआ स्कॉलरशिप में, और क्योंकि जो SNA हमारा जो अकाउंट है, स्टेट नोडल अकाउंट, अब वो स्पर्श में चला गया, तो उसमें सर कुछ टेक्निकलिटीज थी जिससे हमें इसमें डिले हुआ था। अब वो उसकी क्लैरिटी हो गई है। पिछले 1-1.5 महीने से स्कॉलरशिप जो है वो दोनों कम्युनिटीज़ को, शायद ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्कॉलरशिप है। इसमें जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज शामिल हैं, उसमें बाइफिकेशन कोई नहीं सर, ST1 ST2 नहीं, वो सब जो है वो एक वेरिफिकेशन के बाद एक प्रोसीजर के तहत जो है बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, और वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, उसमें चल रहा है। अगर कहीं डिले अगर होगा तो उसका मैं कारण मालूम कर लूँगा क्यों डिले है, लेकिन स्कॉलरशिप हमने रिलीज कर दिया है, वो डिटेल यहाँ दे दी है डिफरेंट लेवल पे। हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर ये डिटेल दे दी है। हमारे काफ़ी हॉस्टल यहाँ चल रहे हैं, 28 के करीब हॉस्टल हैं, 26 के करीब नए हॉस्टल हैं, और 10 के करीब जो है वो हॉस्टल जो है वो कंप्लीशन के करीब है। सर, मैं ये गुजारिश करता चलूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ भी इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़िम्मे में है, जिसमें एक बड़ी कम्युनिटी जो है पहाड़ी कम्युनिटी, और क्योंकि ये पहले इसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देखता था, और अब हमने कोशिश की है कि ये डिपार्टमेंट जो है हम खुद देखें, क्योंकि वो भी ट्राइब हैं, और हम खुद देखें। अभी तक हमारे पास जो है फाइनल वो आया नहीं, लेकिन हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया है सर। जैसे धरती आबा का हमारे पास एक प्लान आया, और मैंने जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स विलेजेस थे वो मैंने आइडेंटिफाई किए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने उनका अप्रूवल दे दिया, और मोटा को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को दिल्ली में भेज दिया कि ताकि वो गांव भी हमारे आ जाए। लेकिन अभी हमें वो जो अप्रूवल है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से वो पेंडिंग है, और जो हमारा ये जो हमारी फंडिंग हो रही है ये 2011 की सेंसस के मुताबिक हो रही है। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं, इस बार भी हमने एक दिल्ली के साथ, मोटा के साथ हमारे जो है कॉरेस्पॉन्डेंस की है कि नई कम्युनिटीज आने से हमारी जो बजट एलोकेशन वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हमें 2011 की सेंसस के मुताबिक जो फंडिंग की जाती है वो सफिशिएंट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो उसमें हम कामयाब हो जाएंगे, और फिर जो शिकायत रहती है उससे हमें जो है वो उसमें हम उस प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं सर गुजारिश करूंगा, यहाँ हमारे
गरेज से हमारे गरेजी साहब का एक इशू था, क्योंकि उनका भी वो ट्राइबल एरिया है और वो हॉस्टल की डिमांड कर रहे हैं सर। क्योंकि इस पे रेवेन्यू जो है वो लैंड आइडेंटिफाई करेगा और हम इंशाल्लाह फंडिंग करेंगे। मैं ये गवर्नमेंट की तरफ से ये कन्वे करूंगा, मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये कन्वे करूंगा कि वो डीसी श्रीनगर लैंड प्रोवाइड करें और ताकि हम ग्रेज के जो बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल वहाँ प्रोवाइड किया जाए। इसी तरीके से हमारे पहाड़ी हॉस्टल जो है वो भी नागुफ्ता बे हालत में है। मैंने अनंतनाग जैसे जिक्र किया, मैं मेरे प्रोग्राम साहब हम अपने कुल्लू साहब हम वहाँ गए थे, मैं गुजर हॉस्टल में भी गया, पहाड़ी हॉस्टल में भी गया, फिर हमने पहाड़ी हॉस्टल को दूसरी जगह शिफ्ट कराया क्योंकि कंजेस्टेड एरिया में रहते थे। और हम इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे जो हमारे पहाड़ी हॉस्टल्स हैं इनके लिए भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और हमारे जो हमारे ग्रेज से हैं उनका भी जो बच्चों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाए, इस पर हम डिपार्टमेंट एक्सरसाइज कर रहा है। और तमाम डीसीज को मैंने चिट्ठी लिख दी है कि जहाँ जहाँ भी पहाड़ी हमारे हॉस्टल खोले जा सकते हैं नए, वो खोले जाएंगे इंशाल्लाह। और जो पुराने हॉस्टल हमारे हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको रिनोवेट करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट काम करेगा। अकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सर हमारे 6 के करीब चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में और नए 6 की हमने जो है वो मोटा को सिफारिश की है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो 6 भी आ जाएंगे और जहाँ जहाँ भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये स्कूल दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो हमें कोई 78 करोड़ रुपया जो है रिलीज हुआ सर, पूरे हमारी 78 करोड़ की किटी है सर। अब मेरे ऑनरेबल एमएलए साहब मैं एक रिकॉर्ड में सर लाऊंगा और मुबारक करूंगा इस तरफ बैठे हुए एमएलए साहिबान को और उस तरफ बैठे हुए एमएलए साहिबान, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया सर मैं 4th टाइम लेजिस्लेटर हूं और मैंने जो इस साल में ये सुना है कि इस तरफ से भी इस तरफ से भी ट्राइबल को लेके कंसर्न सबका है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी परेशानियों के हल के लिए, चाहे वो कठुआ से हूं, अखनूर से हूं, सांबा से हूं, कश्मीर से हूं, एक कंसर्न ट्राइबल डिपार्टमेंट को लेके है। मैं गुजारिश करूंगा कि क्योंकि हमारे पास तो जो किटी है वो आपके सामने है, तो इसमें जो हमारे जो धरती आबा है, धरती आबा में सर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे जो हैं जिसको मोटा ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है जिसको फंडिंग करता है, तो मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल एमएलए साहिबान से कि अपने अपने एरिया में ट्राइबल की बस्ती को लेके, जैसे हमारे सजाद लोन साहब कह रहे थे, हमारे दोस्त हमारे फयाज साहब का एरिया है, श्यामलाल जी फरमा रहे थे, सलाथिया साहब का कंसर्न रहता है ट्राइबल को लेके, या जसरोटिया साहब हैं हमारे इस तरफ के ऑनरेबल एमएलए साहिबान हैं। सर मैं गुजारिश इनको करूंगा कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलके अपने एरिया का प्लान फ्रेम करें और हम वो प्लान जो है मोटा को भेजेंगे ताकि वही डिपार्टमेंट उन्हीं, जैसे आरएनबी है, जैसे पावर सेक्टर है, जैसे जो है वो दूसरे हमारे डिपार्टमेंट हैं, उनको मोटा जो है वो फंडिंग करेगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आपने अपने एरियाज में बड़े प्रोजेक्ट लेके वो करें और उसमें इंशाल्लाह हर एरिया में वो करने की कोशिश करेंगे। सर मैं दूसरी बात ये गुजारिश करूंगा कि शिकायत देखने को ये मिलती है कि जो प्लान है, जैसे जसरोटिया साहब ने कहा, हमारे दूसरे एमएलए हजरात फरमाते हैं, जैसे कुल्लू साहब ने फरमाया कि हमें पूछा नहीं गया। सर आपकी जानकारी के लिए मेरे पास रजौरी के ऑनरेबल एमएलए हजरात आए थे, यहाँ जावेद चौधरी साहब थे, हमारे दूसरे एमएलए रजौरी डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने कहा कि हमें डीसीज ने पूछा नहीं है, प्लान जो है वो बना दिया है। सर उस प्लान को हमने विड्रा किया और फिर एमएलए साहिबान की रिकमेंडेशन पे उन कामों को अकोमोडेट किया। इसी तरीके से मैं गुजारिश करूंगा कि ये डीसीज को क्लियर डायरेक्शन दी गई है कि वो ऑनरेबल एमएलए हजरात को पूछ के प्लान फ्रेम करें। अगर जहां कहीं भी प्लान एमएलए की वेटिंग के बगैर जो है प्लान आता है, उस प्लान को जो है डिपार्टमेंट कंसीडर नहीं करेगा। मेरी फिर डीसीज को डायरेक्शन दी जाती है कि वो एमएलए साहिबान को कॉन्फिडेंस में रख के करें। और मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने को है सर, मार्च में ऑनरेबल एमएलए साहिबान जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जो प्लान सबमिट करेंगे उसकी कॉपी एक हमें भी दें और डीसी को दे दें ताकि हम अप्रैल में ही आपके जो है वो काम शुरू करवाएं।
हो गया, अब टाइम फिर बढ़ाना पड़ेगा। सर नहीं सर, मैंने ये गुजारिश की, अब मैं ये इस पे ये सर भी आया, काफी एक चीज जरूरी थी जो डेवलपमेंट ट्राइबल होम स्टेज अंडर सपोर्ट टू TRI स्कीम्स, ये कुल्लू साहब ने भी कहा था ट्राइबल एरिया, क्योंकि पहलगाम और इस एरिया में है, तो इसके लिए जो है TRI जो हमारा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सर, उसमें हम काम कर रहे हैं और ये जो होम स्टेज के लिए बाकायदा तौर पे एक प्रोजेक्ट जो है ला रहे हैं और इस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरीके से जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का एक बड़ा सर, ये पहले मेरा अपना ही डिपार्टमेंट है दोनों, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे नोडल डिपार्टमेंट था, अब हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का मशकूर हूं मैं कि उन्होंने नोडल डिपार्टमेंट जो है ट्राइबल को बनाया है। और इसके लिए जो हमने जो मैकेनिज्म की बात यहाँ ऑनरेबल MLA साहिबान कर रहे थे, वो हमने सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंस लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो सेल हैं वो काम कर दिए गए हैं और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है फाल बना दिया गया है, वो करेंगे और इंशाल्लाह फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे। सर मैं लास्ट में उससे पहले कि मैं तमाम ऑनरेबल मेंबर हजरात से ये गुजारिश करूं कि मोशन वापस ले ले, मोशन वापस करें तकरीर के बगैर। वो हमारी तो अपनी बात सर ये है कि गोली किसदी, शाम लाल जी गोली किसदी था, कहना किसदा, कि हम तो हमेशा इंशाल्लाह आपके डिस्पोजल पे हैं, पूरे हाउस के डिस्पोजल पे हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि उसको वापस लें सर एक बात मैं गुजारिश करूंगा, रेना साहब है हमारे, ये बात कर रहे थे और लास्ट में ये रिक्वेस्ट मैंने कर दी सर, एक सर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पूरे जम्मू कश्मीर को आप शेड्यूल ट्राइब करार दें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हर आदमी का वो है, लेकिन सर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस लेने के लिए अब पहाड़ी भाई जो हमारे 70 साल उन्होंने स्ट्रगल किया और उसमें कैटेगरी में फाल करते हैं, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, वही गुजर का है वही पहाड़ी का है, उनको शेड्यूल ट्राइब मिल गया। सर अल्लाह के लिए हम पे रहम करें, अगर गांधीनगर वाले भी हम शेड्यूल ट्राइब मांगेंगे तो लाल चौक वाले भी शेड्यूल ट्राइब मांगेंगे, सर हम कहां जाएंगे? हमें कोई एतराज नहीं है, एक मिनट में मैं बताता हूं, हमें कोई एतराज नहीं है, अगर किसी चीज में ये क्राइटेरिया में फाल करें हमें कोई नहीं, लेकिन सर फाल नहीं करते हैं। और इस तरीके से मैं ये कहूं कि एक किसी की जो है वो दिल को जो है वो जख्म पहुंचाना बेहतर नहीं है, तो लिहाजा मैं कहूंगा कि शेड्यूल ट्राइब जो पहाड़ियों को मिला है वो उनकी बैकवर्डनेस को, एजुकेशनली बैकवर्डनेस, ओवरऑल बैकवर्डनेस को देख के गुजर बकरवाल, सिप्पीज, गद्दीज वगैरह और जो हमारे दूसरे ट्राइब यहाँ हैं उनको मिला है, तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा, हमारी दवाएं आपके साथ हैं गांधीनगर और लाल चौक वालों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू मिनिस्टर साहब।